देखिए क्वेश्चन नंबर 36. A company has two divisions, division A and division B. Both divisions of the company manufacture the same product but located at two different places. So there are two divisions. दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं but they are situated at different places. The annual output of division A is 6,000 tons at 80% capacity and that of division B is 7,500 tons at 60% capacity. This is what they generally produce or what they normally produce. So division A being operating at 80% capacity, it is producing 6,000 tons. And division B operating at 60% capacity is producing 7,500 tons. So you can even find out the total capacity if required. The basic raw material required for production is available locally at both the places, but at division A it is limited to 4,000 tons per annum at the rate of rupees 100 per ton. At division B it is limited to 8,000 tons per annum at the rate of rupees 110 per ton. So both of them, they are using the raw material which is available locally. So wherever the divisions are situated, the raw material is available in that place only, but there is a limitation of that availability. The place where division A is located, there 4,000 tons are available in the entire year and the rate is 100 rupees per ton. For division B, the local availability of raw material is 8,000 tons and it can be acquired at a rate of 110 per ton. Any additional requirement of material will have to be purchased at the rate of rupees 125 per ton from other markets at either of the divisions. जितना locally available है, if you require more than that, अगर उससे भी ज़्यादा raw material चाहिए, in that case you will have to purchase it from outside markets and it will cost you 125 rupees per ton. Variable cost per ton at each division remains constant. So other variable costs are the same. There is only the difference in material cost. Rest all the variable costs are same for both the divisions. For every 1,000 tons of output, 800 tons of raw material is required. This is the input-output ratio. If you need an output of 1,000 tons, input you will have to provide for 800 tons. 8:10 is the input-output ratio. The details of other cost of the divisions are as follows. So other variable cost of output at division A it is 122 per ton, whereas at division B it is 120 per ton. Fixed cost per annum for division A it's given as 3,80,000 and for division B it's given as 6,00,000. Required. Calculate variable cost per ton for each division's product and decide ranking in order of preference. So first point में you have to find the variable cost per ton for each division. Division A का variable cost per ton कितना, B का variable cost per ton कितना, and accordingly you have to rank them. That whatever production is required, whatever the demand is, आप पहले कौन से division से production करवाओगे, आपको ये ranking देनी है. Second, the company desires to fully utilize the available local supplies of raw material to save the overall variable cost of production, keeping the total production of both the divisions putting together is the same as at the present level. बोला गया है प्रोडक्शन आपको सेम रखना है, टोटल प्रोडक्शन दोनों डिविजन्स का मिला के जो टोटल प्रोडक्शन है ना, वो जितना प्रेजेंटली आप कर रहे हो, दैट इज 6,000 and 7,500, टोटल 13,500. अभी भी यू हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर आउटपुट एज कांस्टेंट. टोटल आउटपुट अभी भी दोनों डिविजन्स का उतना ही होना चाहिए, बट वी आर नाउ प्रेफरिंग कि हम इस तरह से आउटपुट बनाएं कि हमारे पहले दोनों डिविजन्स की लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एग्जॉस्ट हो. तो अगर आप देखो क्वेश्चन, तो डिवीजन ए को रिक्वायरमेंट कितनी है, 6,000 टन्स का उसे आउटपुट बनाना है, एंड इट सेड इफ यू नीड एन आउटपुट ऑफ 1,000 kgs यू हैव टू इनपुट 800 kgs. 80% जितना आपको इनपुट करना पड़ता है. मतलब इफ यू नीड 6,000 kgs एज द आउटपुट यू विल रिक्वायर 4,800. 80% is the input, not output.
800 का इनपुट करते हो तो आपको 1000 kgs का आउटपुट मिलता है। तो डिवीजन ए को 6000 यूनिट्स का आउटपुट चाहिए, इनपुट कितना करेगी? 4800। डिवीजन बी को 7500 का प्रेजेंटली आउटपुट चाहिए, ये कितना इनपुट करेंगे? 6000। दिस इज द इनपुट रिक्वायरमेंट। ओके, जबकि अगर हम अवेलेबिलिटी देखें तो डिवीजन ए में कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? 4000 kg, 4000 टन्स चाहिए उसे। 4800, रिक्वायरमेंट इज 4800, whereas availability is only 4000 tons. That means the balance 800 we must be procuring from outside market. 125 rupees पे हम बाकी का खरीदते होंगे। डिवीजन बी अगर हम देखें तो 6000 is the requirement and availability is 8000। यहाँ पर सरप्लस है। तो सेकेंड पॉइंट में बोला है आपको ये जो टोटल आउटपुट है ना वो कांस्टेंट रखना है। टोटल आउटपुट आपको 13500 ही चाहिए। इसका मतलब टोटल इनपुट भी आपको 10800 टन्स का ही करना है। बट पहले आप दोनों डिविजन्स की लोकल सप्लाईज को एग्जॉस्ट करोगे सो दैट योर कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। ओवरऑल आपके कॉस्ट में सेविंग हो, क्योंकि आउटसाइड मार्केट से खरीदना हमें महंगा ही पड़ रहा है। तो ओवरऑल कॉस्ट में सेविंग्स के लिए बोला गया है फर्स्ट यू विल ट्राई टू एग्जॉस्ट दी लोकल अवेलेबल सप्लाईज ऑफ बोथ द मार्केट्स। उसके बाद ही अगर कुछ बचता है तो आप बाहर से खरीदोगे, आउटसाइड मार्केट से खरीदोगे। इसका मतलब हमें कुछ प्रोडक्शन को ए से बी में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बी में सरप्लस रॉ मटेरियल अवेलेबल है जबकि ए में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। Calculate the quantity of production, that is output, that could be transferred between the two divisions and overall savings in variable cost. So we have to find out हम A से कितनी क्वांटिटी आउटपुट की, स्पेसिफिकली बोला आउटपुट की, इनपुट की क्वांटिटी निकाल के काम नहीं होगा। इफ यू जस्ट राइट 800 टन हमें ट्रांसफर करना है, उससे काम नहीं बनेगा। आपको आउटपुट के टर्म्स में उसे कन्वर्ट करके लिखना है। आउटपुट के टर्म्स में हम कितना आउटपुट ए से बी में ट्रांसफर करेंगे एंड ये ट्रांसफर करने से हमें ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट में कितनी सेविंग्स होंगी। थर्ड, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑप्शन 2, हाउ द बैलेंस कैपेसिटी शुड बी यूटिलाइज्ड इफ द कंपनी इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी। नाउ द कंपनी वांट्स टू वर्क एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी मतलब आपकी जो लोकल सप्लाईज है वो तो आप यूज करो, उससे भी ज्यादा अगर आपका कैपेसिटी बचता है, लाइक इफ वी सी ये 80% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट कर रहा है और डिवीजन भी 60% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट कर रहा है। ओके, दैट मीन्स टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी दोनों डिविजन्स की? 7500 and what about this? 12,500. This is the total capacity. Okay, तो थर्ड पॉइंट में बोला है नाउ वी हैव टू प्रोड्यूस दिस मच। ए 7500 बनाए, बी 12,500 बनाए। जब ये प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली हमारा रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो तो खत्म हो ही जाएगा। उसके अलावा हमें जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है that we'll have to buy from the outside market. Okay, and also calculate selling price per ton if company wants a markup of 10% on full cost of each division's product. So now when the company is working at 100% capacity, आपको वर्किंग करना है कैसे ये अरेंजमेंट होगा, कितना मटेरियल लोकल में आएगा, कितना मटेरियल हम बाहर से लेंगे, क्या क्या कॉस्टिंग होगी, and you have to give the selling price per ton with a markup of 10%. 10% का मार्कअप ऐड करके आपको सेलिंग प्राइस डिटरमिन करना है। क्लियर है? क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, वेयर इज जयना?
सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें बोला है टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर टन फॉर ईच डिविजन्स प्रोडक्ट। दोनों डिविजन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका हमें वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है। डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। Now both the divisions can produce using the locally available material or they can produce from the outside material। दोनों में उनका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा। सो अगेन वील डू द ब्रेकअप, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम दोनों के लिए फाइंड कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मटीरियल procured locally and outside। Similarly for B, material procured locally and outside। When we are buying material locally, तो division A का material cost comes out to be 100 rupees per ton, but that is for the raw material। रॉ मटेरियल का 1 टन पे 100 रुपीज हमें पे करना पड़ता है। व्हाट वी आर फाइंडिंग इज फिनिश्ड गुड्स के 1 टन का वेरिएबल कॉस्ट कितना। हम जो कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, हमें पता है फिनिश्ड गुड्स के 1 टन के लिए हमें 0.8 टन ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। 80% इज द इनपुट आउटपुट रेशियो। अगर आप 8 टन्स इनपुट करोगे यू विल गेट एन आउटपुट ऑफ 10 टन्स। सो इफ यू नीड एन आउटपुट ऑफ 1 टन यू विल हैव टू इनपुट 0.8 टन्स। तो मटेरियल कॉस्ट भी 0.8 टन्स का ही लगेगा। दिस विल बी 0.8 इंटू 100, दैट इज 80 रुपीज। अगर आउटसाइड मार्केट से हम परचेज करेंगे तो डिविजन ए में दिस विल कॉस्ट 125 पर टन। सो 0.8 टन्स का कॉस्ट कितना, 100 rupees। Then for division B, if we are procuring the materials locally, it is costing 110 rupees। So 8 tons, 0.8 tons का the cost will be 88 rupees। And again if we are buying it from outside, it will cost us 125। So the material cost shall be 100 rupees per ton of finished goods। इसके अलावा we have some other variable cost। Other variable costs are given as, see in the table it's written other variable cost of output। तो यहाँ पर जो per ton लिखा है that refers output only। इसको हम directly add कर सकते हैं। So division A का this cost is 122 and division B के लिए the cost is 120। So we'll have total variable cost per ton of output 202, 222, 208 and 220। Yes। इट्स नॉट गिवन कि आप प्रेजेंट वाले प्रोडक्शन पे निकालिए कॉस्ट पर टन। इट्स जस्ट सेड फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट पर टन फॉर ईच डिविजन प्रोडक्ट। सो डिविजन माइट प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग हो सकता है। सिंस ये नहीं बोला है कि प्रेजेंटली जो वो ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप निकालिए।
दैट इज नॉट गिवन. इनफैक्ट हम देख सकते हैं डिवीजन ए तो अभी भी आउटसाइड मार्केट से परचेज कर ही रहा है, बी को अभी ये जरूरत नहीं पड़ रही है, बट आगे वाले क्वेश्चन में वो भी पड़ सकती है 100% कैपेसिटी पर जब वो ऑपरेट करेंगे. सिंस इट्स नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, बीइंग ऑन अ सेफर साइड हमने दोनों का फाइंड कर लिया. वैसे भी हमें आगे क्वेश्चन में यूज हो जाएगी इंफॉर्मेशन. नाउ वी हैव टू रैंक दीज प्रोडक्ट्स. रैंकिंग करनी है अब हमें. सो दीज आर कॉस्ट, सो वील ट्राई टू मिनिमाइज दीज कॉस्ट. हम सबसे पहले कोशिश करेंगे डिवीजन ए अपने लोकल अवेलेबिलिटी से जितना प्रोडक्शन कर पाए वो करे. हमारा सबसे पहला अलॉटमेंट विल बी एट डिवीजन ए. उसके बाद जब डिवीजन ए का लोकल प्रोक्योरमेंट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे डिवीजन बी पे. डिवीजन बी के पास अगेन जितना लोकल मटेरियल है, वी विल ट्राई टू एग्जॉस्ट दैट फर्स्ट. पहले हम उसके लोकल मटेरियल को एग्जॉस्ट करेंगे. जब ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा तो दोनों की लोकल रिक्वायरमेंट तो लोकल अवेलेबिलिटीज एग्जॉस्ट हो गई है. नाउ वी हैव टू बाय मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड मार्केट. तो हम कोशिश करेंगे पहले हम बी में मटेरियल खरीदें और बी का प्रोडक्शन बढ़ाएं. बी में अगर आप आउटसाइड मार्केट से खरीदते हो तो कॉस्ट लगता है 220, ए में खरीदते हो तो कॉस्ट लगता है 222. सो वील ट्राई कि अगर आउटसाइड मार्केट से परचेज करके प्रोडक्शन करना है तो फर्स्ट वील डू इट इन डिवीजन बी. इसके बाद अगर फिर भी जरूरत पड़ती है, ओनली देन वील गो टू डिवीजन ए. क्लियर है? एनी डाउट्स? सो दीज आर द रैंकिंग्स based on which we'll do our selection. This was the first part. Now the second part. Second part says, अगर मान लीजिए दोनों divisions को अभी भी उतना ही production करना है जितना वो presently कर रहे हैं. The company desires to fully utilize the available local supplies of raw material to save the overall variable cost of production, keeping the total production of both the divisions putting together the same as at the present level. जितना आप अभी तक कर रहे हैं टोटल उतना ही प्रोडक्शन करना है. मतलब अभी तक दे आर प्रोड्यूसिंग 13,500 टन्स, सो इवन नाउ दे वांट टू प्रोड्यूस इन टोटल 13,500 टन्स. बट दे नाउ वांट कि पहले हम अपने लोकल सप्लाईज को एग्जॉस्ट करें. फर्स्ट वी फिनिश ऑफ द लोकल अवेलेबिलिटी, वो खत्म हो जाए, ओनली देन वी गो फॉर आउटसाइड परचेज. ओके, तो हम देख सकते हैं इतना प्रोडक्शन जो प्रेजेंटली किया जा रहा है उसके लिए वी नीड दिस मच ऑफ रॉ मटेरियल 10,800. हमारे पास डिवीजन ए में अवेलेबिलिटी है 4,000 टन्स की एंड डिवीजन बी में अवेलेबिलिटी है 8,000 टन्स. मतलब टोटल अवेलेबल है हमारे पास 12,000 टन्स. हमारी रिक्वायरमेंट है केवल 10,800. सो दैट मीन्स प्रेजेंट प्रोडक्शन जितना करने के लिए तो हम लोकल प्रोक्योरमेंट से ही काम चला सकते हैं. हमें आउटसाइड मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब लोकल में भी 10,800 टन्स आपको चाहिए या आपको इतने बनाना है 13,500 यूनिट्स. पहले आप क्या कोशिश करोगे, ए से बनवाएंगे या बी से? ए से. ए इज कॉस्टिंग अस लेस. हमने रैंकिंग दी है ए को, तो वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग करने के लिए हम पहले ए के जितने भी लोकल मटेरियल्स हैं दैट इज 4,000 टन्स हम कोशिश करेंगे वो एग्जॉस्ट हो जाए. मतलब आउट ऑफ दिस 10,800 टन्स 4,000 टन्स तो हम ए के यूज करेंगे. बाकी के 6,800 टन्स वी विल प्रोक्योर एट बी. उनसे हम बी में प्रोडक्शन करेंगे. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट that could be transferred between the two divisions and the overall savings in variable cost. So we have to find कितना आउटपुट हम A से B में ट्रांसफर कर रहे हैं. इनपुट के टर्म्स में तो हमने देखा 4,800 की जगह ये 4,000 हो जाएगा, 800 इधर ट्रांसफर हो जाएगा. आउटपुट के टर्म्स में ये कितना, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं 800 टन्स का इनपुट है मतलब 1,000 टन्स का आउटपुट है. तो 1,000 टन्स का आउटपुट ट्रांसफर होगा फ्रॉम A to B. एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल सेविंग्स भी हमें कैलकुलेट करनी है इन वेरिएबल कॉस्ट. तो प्रॉपरली अगर हम इसको प्रेजेंट करें, डिवीजन ए एंड बी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज 4,000 टन्स
and 8,000 tons. Total available is 12,000 tons. Total production, that is output or present production. The present output is A पे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 6,000 tons, B में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 7,500 tons. That is in total we are producing 13,500 tons of output. So total requirement of input at the rate of 80% will be 10,800. Present production जितना आपको total maintain करना है. So if you have to maintain that total, आपको 10,800 tons के raw material की जरूरत पड़ेगी. Allotment of production based on ranking in 1. $10,800 को हम किस तरह से अलॉट करेंगे? तो 4,000 will go to A and the balance 6,800 will be allotted to B. Output to be produced 4,000 tons का मटेरियल अगर आप A को अलॉट कर रहे हो, that means आउटपुट इससे कितना बनेगा? 4,000 divided by 0.8. This must be 80% of the output. $5,000 tons का हमें आउटपुट मिलेगा at A. तो बाकी का 8,500. 6,800 divided by 0.8. 8,500 we'll produce at B. Total हो गया 13,500. Therefore, कितना आउटपुट हमने ट्रांसफर किया? 1,000 टन्स. प्रेजेंटली हम ए पे 6,000 टन्स बनाते थे, अब हम ए पे सिर्फ 5,000 टन्स ही बना रहे हैं. So 1,000 tons of raw material shall be transferred. 1,000 tons of output shall be transferred from A to B. Now we have to calculate savings इसमें कितनी होंगी, how much we have saved. तो ये जो 1,000 tons आपने ट्रांसफर किए, अगर आप इनको A पे बनाते, if you would have produced them at A, आपको A पे आउटसाइड मार्केट से मटेरियल खरीदना पड़ता. That means the cost applicable should have been this much. 222 rupees per ton का कॉस्ट आप इनकर करते ऑन दीज 1,000 tons. अब आपने क्योंकि इसे B में ट्रांसफर कर दिया है तो द कॉस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल इज 208. मतलब नेट हम देख सकते हैं 14 रुपीज का हमें सेविंग हुआ है पर टन. अगर हम A पे ही बनाते रहते तो ये वाला तो हो चुका एग्जॉस्ट. ये 1,000 टन्स भी अगर इधर से बनते, आउटसाइड मार्केट से हम मटेरियल खरीद के बनाते, तो हमें लगता है 222 rupees per ton of output. This is based on output, not based on input. तो हम भी 1,000 tons की जो बात कर रहे हैं वो आउटपुट ही है. 1,000 tons बनाते तो उस पर 222 rupees लगते. अब क्योंकि हम A में नहीं बनवा के हम B के लोकली प्रोक्योर्ड मटेरियल से ये बनवा रहे हैं, तो हमें कॉस्ट लगेगा केवल 208 per ton. That means there is a saving of 14 rupees per ton. क्लियर है? Cost of 1,000 tons if produced at A
by purchasing raw material from outside market, 222 into 1000, that is 222,000. Cost of 1000 tons when produced at B by local raw material, it will now cost us 208 into 1000, that is 208,000. Savings in, these are the variable cost. Savings in variable cost 14,000. Any doubts? Third,